Hello dear students, we have learned many parts of grammar in our topics till now, and today one more chapter is there for you in grammar. Okay, so standard 4 I am welcoming you to our new chapter, and the name of the chapter is tenses. Okay, it is a very much important part of English. If you learn tenses, then it can be said that you have learned the English language. Okay, after learning these tenses, you have to be uh, used to of it. Okay, आपको उससे used to रहना है. Tenses क्या होता है? What are the tenses? Tenses is a very important part of grammar, as I told you. And today we are going to learn about tenses, three types of tenses, and in that tense wise we are going to learn about types of tenses as well. तो present tense उसके types of tenses, past tense उसके types of tenses, and future tense उसके भी types of tenses हम आज करने वाले हैं. Okay, so before we start, I want to tell you something about tenses. Children, you have learned about verb. What are the verbs? Verbs are the action words or being words. हम क्या बोलते हैं? Verbs क्या है? Action words or being words है. And when these tenses we are learning, at the time I want to tell you that what are the tenses mainly depended on. Mainly tenses किसके ऊपर depended है? तो they are depended on the verbs, form of verbs. Okay, tenses are a verb form that indicates the time. Okay, sometimes continuation or completeness of the verbs time. So let us start doing our first one. Before we start, I am explaining present tense. हम इसके types of करने जाए. Before that, let us see what is present tense. Mainly आपको इतना तो पता ही है कि there are three types of tenses mainly, और उसमें भी types of tenses है, as I told you. तो सबसे पहला present tense, then past tense and future tense. Okay, so what is there in present tense? There are four types of tenses: simple, perfect, continuous and present perfect. ये four types आपको हर एक tense में सीखने हैं. Simple present tense में भी simple present tense, past tense में भी simple past tense और future tense में भी simple future tense. उसी तरह से perfect, continuous और present perfect continuous. And each of these has a present, past and future form. और ये चारों प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी होते हैं. सो इस तरह से हम देखने जाए, देन वी आर हैविंग 3 into 4, सो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन टोटल. 12 तरह के टेंसेस है. एंड फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? So in simple present tense the action is simply mentioned. एक तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि what is present tense. Present tense क्या है? So what is now? अभी क्या है? हम जो अभी के बारे में बात कर रहे हैं, that is known as present tense. जो present में, what is there in present? That is called present tense. जो अभी है वो present में, उसको हम present tense बोलते हैं. So यहाँ पे हमको क्या दिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? तो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस द एक्शन इज सिंपली मेंशन. एक्शन सिंपली मेंशन्ड है. हमको पता है कि क्या हो रहा है. ओके, क्या होता है. ओके, एंड देयर इज नथिंग बीइंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस. कब होता है वो नहीं पता. वी डोंट नो इस टाइम. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज इनडेफिनिट. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कैसा है? इनडेफिनिट है. बराबर. वो आपको एग्जांपल में देती हूँ. आई ईट, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ. मैं खाता हूँ
या मैं खाती हूँ, खाता हूँ, बट हमको नहीं पता वो प्रेजेंट टेंस में है. The sentence I have told, it is in present tense, वो present tense में है, but it is not about now, अभी की बात नहीं है. Okay, means कि it is not continuing now, वो continue action नहीं बता रहा है. I eat, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, रोज सोता हूँ, पर कौन से टाइम को सोता हूँ वो नहीं पता. ओके, जस्ट नाउ वो सो रहा है कि नहीं वो हमको नहीं पता. ओके, आई राइट, मैं लिखता हूँ, कौन से टाइम पे लिखता है वो तो उसको ही पता है. आई राइट, पर हमको उसने बोला कि मैं लिखता हूँ तो वो लिखता है, मतलब कि प्रेजेंट में वो लिखता है, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड दैट डेफिनेट दैट एट व्हाट टाइम ही इज राइटिंग. सो हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको सिर्फ क्या मेंशन करते हैं, एक्शन इज सिंपली मेंशन, सिर्फ एक्शन है वो सिंपली मेंशन हो रहा है. वो क्या कर रहा है दैट वी हैव कम टू नो, क्या करता है, कर नहीं रहा पर क्या करता है, दैट वी हैव कम टू नो फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस. और जनरली वो ऐसा करता है. हमारे टीचर पढ़ाते हैं, बट अभी वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं वो नहीं पता. सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि टीचर रोज पढ़ाते हैं, टीचर टीच, तो टीचर पढ़ाते हैं, बट उसका जो वो इनडेफिनेट है, बिकॉज वी डोंट नो कब एक्शन चालू होता है और कब खत्म होता है. सो हियर यू नो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. So here we are at the second part of present tense, and what is it? It is present continuous tense. So children, from the heading itself we have come to know this is present and also continuous. Present भी है और continuous भी है. What it means, इसका मतलब क्या होता है? So in present continuous tense the action is ongoing, still going on, okay, and hence it is continuous. क्यों? अब जो दूसरी तरह से मैं बोलूँ तो ये कैसा है पता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज शोज अस इनकम्प्लीट एक्शन, मतलब कि उसमें जो एक्शन है, जो वर्ब है हमारा, इट नेवर कंप्लीट्स, वो कभी कंप्लीट होता नहीं है. तो इसके लिए हम हमेशा वी आर यूजिंग वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं. ओके, सो आपको ये याद रखना है. इट इज़ वेरी important to you that you have to remember this in your mind, that when you are using continuous word in tenses, continuous जब use करते हैं, at that time for after verb you must add ing. verb के साथ verb form में ing लगता है. eat, eating, sleep, sleeping, think, thinking, write, writing, jump, jumping. Okay, so this you have to be very sure about. Okay, example, I am eating, इसका मतलब क्या है? मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ. So खा रहा हूँ, still going on, अभी जो हमारा काम है, खाने का जो एक्शन है वो चालू है. It is not it completed, वो complete हुआ नहीं है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ या मैं सो रहा हूँ. सो स्लीपिंग, अभी भी वो नींद में, उसकी नींद अभी भी चालू है, मतलब कि वो उसकी नींद जारी है. जारी होना, कुछ कंटिन्यू होना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस. ये बात आपको याद रखनी है. जब कंटिन्यूअस वर्ड आता है, या तो फ्यूचर टेंस में हो या पास्ट टेंस में और इन प्रेजेंट, every time, in every form of tenses, when continuous words comes, that time you have to remember that there is ing after the verb. जो verb है उसके पीछे ing लगता है. So here और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे माई टीचर इज टीचिंग, मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं. पढ़ाते हैं हमने प्रेजेंट टेंस में क्या देखा था? पढ़ाते हैं. कब पढ़ाते हैं वो पता नहीं है, पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं. ओके, शी टीच डेली, बट व्हेन वी डोंट नो. हियर यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस हमको बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो ऑन गोइंग है, मतलब कि हम जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं. नाउ एट दैट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम शी इज टीचिंग. एंड जब हमारा
सेंटेंस खत्म होता है तब तक एक्शन खत्म नहीं हुआ। रिमेंबर दिस, जब तक हमारा सेंटेंस खत्म, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मतलब कि जब सेंटेंस खत्म हुआ तब तक खाना तब चालू ही है। ओके, सो हियर कंटिन्यू, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? जब हम एक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन विच इज ऑन गोइंग और गोइंग ऑन, in that we are using continuous tense. And remember one very important thing in your mind, that always in every form of tense, when continuous word comes, at that time verb के पीछे ing add होता है। okay, third type in present tense, that is present perfect tense. Now children, in every type of sentence, in every type of tense, तुम हमको हेडिंग से, उसके जो नाम है उसका हेडिंग है उससे पता चल जाएगा कि व्हाट इज देयर इन दिस काइंड ऑफ टेंस। ये टेंस में क्या है, कौन से टाइम की बात है, मतलब कि प्रेजेंट भी है, अभी है, और जो परफेक्ट है, जो हो चुका है, मीन्स के अभी जो हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, द एक्शन इज कंप्लीट और हैज एंडेड, जो काम है या जो एक्शन है, इट इज ऑलरेडी डन। ओके, एंड हैज टर्म्ड परफेक्ट, इसलिए इसमें हमने परफेक्ट यूज किया है। ओके, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स विच इज कंप्लीट, जो कंप्लीट है वो, मतलब कि यहाँ पे क्या परफेक्ट है, व्हाट इज परफेक्ट? यहाँ पे क्या परफेक्ट है, हमारा जो टेंस है, ये हमारा जो एक्शन, जो वर्ब है, दैट इज डन, दैट इज परफेक्ट, दैट इज कंप्लीटेड। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारा वर्ब है वो कौन से फॉर्म में होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ईटन। अब प्रेजेंट के लिए कौन सा वर्ब है? हैव, और परफेक्ट के लिए ईटन। मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कि अभी हूँ, अभी हूँ मतलब कि प्रेजेंट है, और ईटन खा चुका, आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँ प्रेजेंट में, मैंने खाना खा लिया था नहीं, बट मैं खाना खा चुका हूँ। That is why we have written I have eaten. Have stands for present tense. Have किसके लिए है? Present tense के लिए। और eaten है मतलब कि जो खाने का जो एक्शन है, that has completed, वो पूरा हो चुका है। Got it? Next है I slept. I slept का मतलब क्या है? मैं सो चुका हूँ। ओके, मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुकी हूँ, दैट इज कॉल्ड, इसके लिए यहाँ पे हमने ये जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे वी स्लेप्ट भी हो सकता है। ओके, आई हैव प्लेड, तो मैं खेल चुका हूँ, मेरा खेलना खत्म हो गया है अभी, नाउ आई हैव प्लेड, मेरा खेलना खत्म हो चुका है। हैव है वो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है, वेयर एज प्लेड शोज अस और इंडिकेट अस दैट इट इज ऑलरेडी डन। ओके, सो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो प्रेजेंट में जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। what it means, इसका मतलब क्या हुआ? So let us see. तो present perfect continuous tense, in this tense the action has been taking place for some time and is still going on. मतलब कि कोई काम हमने शुरू कब से किया है, वो पार्ट में तो हो ही चुका है, बट वो अभी भी वो काम चालू है। ओके, so that is called present perfect continuous tense. प्रेजेंट है, परफेक्ट भी हो चुका, मतलब कि खत्म भी हो चुका है और चल भी रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट अस सी थ्रू एग्जांपल,
I have been reading since morning. See, I have been reading since morning. मॉर्निंग का पार्ट तो खत्म हो चुका है. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. ओके, तो सुबह का पार्ट सुबह में तो पढ़ लिया है. ओके, तो वो परफेक्ट हो चुका है. पर अभी भी पढ़ना चालू है. और कब है तो प्रेजेंट. समझ आया? है से हमको पता चलता है कि प्रेजेंट की बात है. और सिंस मॉर्निंग मतलब कि मॉर्निंग का पार्ट खत्म हो चुका है, इसलिए दैट इज परफेक्ट. एंड कंटिन्यू है बिकॉज रीडिंग अभी भी वो काम दैट एक्शन इज गोइंग ऑन, अभी भी वो काम हो रहा है. आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. नेक्स्ट, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006. आई हैव बीन टीचिंग, वो पार्ट में तो पढ़ा ही लिया. 2006 के बाद जितना भी 2021 इज गोइंग ऑन, तो 2006 से पढ़ाना चालू है. वो पार्ट जो खत्म हो गया 2006 से 2020 तक का, बराबर, वो पार्ट में तो पढ़ा ही लिया, वो हो चुका है. ओके, और अभी भी क्या है, पढ़ाना चालू है, टीचिंग. सिंस 2006 इज ऑलरेडी, वो पार्ट चला गया है, उसमें कर लिया बिकॉज, तो यहाँ पे वो परफेक्ट हो गया. बराबर. आई हैव है तो क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस. और बीन टीचिंग तो वो है कंटिन्यूस. समझ आया? तो ये है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006. तो उसका मतलब क्या है, मैं 2006 से पढ़ा रही हूँ. व्हाट इज, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस. प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. पास्ट टेंस में जाएंगे हम. पास्ट टेंस, लेट्स स्टार्ट डूइंग सिंपल पास्ट टेंस. सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सिंपल पास्ट टेंस. रिमेंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट वी हैव डन इन दैट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किया था, जो काम हम करते हैं. ओके, जो काम हम करते हैं मीन्स के इट इज इंडेफिनिट टाइम इंडेफिनिट. इसमें भी ऐसा ही है, कब किया वो नहीं पता पर कर लिया था. तो इन सिंपल पास्ट टेंस द एक्शन इज सिंपली मेंशन. सिंपली एक्शन मेंशन्ड है एंड अंडरस्टूड, के हमको पता चलता है कि वी हैव टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. वो पास्ट में वो काम हो चुका है. वो काम कब हो चुका है, प्रेजेंट टेंस में हम जो करते हैं. बराबर, कब करते हैं वो इंडेफिनिट है. सेम टू दैट, सिमिलर टू दैट, यहाँ पे भी ऐसा है. आई एट, मैंने खा लिया था. ओके, मैंने खा लिया था. ओके, मैंने खा लिया, खाना खा लिया. और यहाँ पे पास्ट टेंस है, खाने का काम है वो कब से खत्म हो चुका है. सो आई एट, पर यहाँ पे हमको टाइम मेंशन नहीं किया है. आई स्लेप्ट, मैं सोया था. मैंने खाया था, मैंने सोया था. मैं सोया था. कब सोया नहीं पता, कब सोई नहीं पता. आई प्लेड, मैं खेला था या मैंने खेला था. कब खेला था वो नहीं पता. तो ये सिंपल पास्ट टेंस, ये इट इज क्या है, यहाँ पे सिंपल ही जो एक्शन है वो मेंशन्ड है विच इज ऑलरेडी डन. ओके, जो पास्ट में हो चुका है, जो कर चुके हैं हम. सिंपली जब ये पास्ट टेंस हम ज़्यादातर हम बात करने के लिए पास्ट टेंस यूज करते हैं. वी आर यूजिंग पास्ट टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग. मोर पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग. जब हम बात करते हैं तो हम कुछ हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, है ना. सो पास्ट टेंस में जो वर्ब फॉर्म है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. सो मूव टूवर्ड्स अवर सेकेंड. नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है. ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस का. तो इसमें हम क्या सीखने वाले, कंटिन्यूअस वर्ड आया. Whenever you heard this word in tenses, at that time हमेशा याद रखना
कि कंटिन्यू वर्ड आता है, कंटिन्यूस वर्ड आता है, तो जो वर्ब है हमारा उसके पीछे ing यूज होता है, आइदर इट इज इन प्रेजेंट और इन पास्ट और इन फ्यूचर। कोई भी तीनों में से कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, वो सब में ing वर्ब फॉर्म के पीछे ing जो मेन वर्ब फॉर्म है उसके पीछे ing लगता है। इन पास्ट कंटिन्यूस द एक्शन वाज गोइंग ऑन गोइंग, या तो गोइंग ऑन भी बोल सकते हैं, ऑन गोइंग टिल अ सर्टेन इन द पास्ट। मतलब कि जब हमने, मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, खा रही थी, मतलब कि खाना चालू था। खाने का जो एक्शन है दैट वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट, मतलब कि मैं जब रोहन के घर गया तो वो खाना खा रहा था, बराबर। तो खाना खाने का जो एक्शन है दैट वॉज ऑन गोइंग और गोइंग ऑन, वो चालू था, काम, वो काम हो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, जब तुम आए तब मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग पास्ट में है, था, थी, था, तो वो पास्ट टेंस है। और सो रहा था, सोना चालू से, अभी सोने का जो एक्शन है दैट वॉज कंटिन्यूस, ओके, वो कंटिन्यू था, इसलिए पीछे ing लगता है। यहाँ पे वन मोर एग्जाम्पल आई हैव रिटन, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, जब तुमने बुलाया तब मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, रहा था तो क्या है, पास्ट टेंस, और खेल रहा मतलब कि खेलने का जो एक्शन है प्लेइंग, इट वॉज ऑन गोइंग और गोइंग ऑन। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यू, जब कंटिन्यू वर्ड आता है दैट मीन्स कि वो एक्शन है, वो क्या है, ऑन गोइंग है या और गोइंग ऑन। और पास्ट है मतलब कि पहले तो वॉज है, ये वॉज क्या बताता है हमको, पास्ट टेंस। वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है विच यूज्ड इन पास्ट, विच इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। वॉज और वेर दोनों ही है जो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, और उसके साथ जो मेन वर्ब है ईट, ईटिंग, स्लीप, स्लीपिंग, प्ले, प्लेइंग, कहीं भी फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में और इन पास्ट, व्हेन कंटिन्यूअस वर्ड इज कमिंग, रिमेंबर दिस वेरी surely that after the verb main verb form ing must be added. Got it? Now let us move towards next. Past perfect tense, पता चल रहा है हमको, पास्ट टेंस है, पास्ट में मतलब जो हो चुका है, परफेक्ट ऑलरेडी डन, पास्ट में हम जो कर चुके थे, बराबर, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इज used to express something that happened before another action in the past, जो हम कर चुके थे that is called past perfect. Okay, now more example, I had eaten, मैंने खाना खा लिया था खाना खाना वो भी खत्म, और था मतलब कि वो टेंस, वो ऐसा कर खा लिया था तो वो हो चुका है, बराबर। तो था से क्या पता चलता है, वो भी पास्ट टेंस है, और ईटन तो खाना खाना वो भी कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट भी है, हैड मतलब, और ईटन वो परफेक्ट भी, वो काम हो भी चुका है। आई स्लेप्ट, मैंने सो लिया था, मैं सो चुका था, मैंने सो लिया था, ओके, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। स्लेप्ट, स्लेप्ट तो वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म ही है, ओके, स्लीप का पास्ट टेंस है, वर्ब थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, आई हैड प्लेड, हैड से पता चलता है, आई हैड प्लेड मीन्स मैं खेल चुका था, मैं खेलना भी खत्म हो चुका था, और था मतलब कि वो टाइम भी खत्म हो चुका है, तो वो पास्ट टेंस में भी है और वो एक्शन भी हो चुका है, तो आई हैड प्ले। तो दिस वी हैव लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस। Now fourth type of past tense, past perfect continuous tense. Again remember present perfect continuous tense, याद है, हाँ, तो उसी तरह से सेम एज दैट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, ओके। सो लेट अस सी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट,
and continued until another time in the past. जो पास्ट में चालू किया गया था तो पास्ट है तो पहले चालू हुआ था, तो हमारा जो एक्शन है इट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड परफेक्ट. सो क्या है, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि पास्ट में वो हो चुका था और पास्ट में वो कंटिन्यू भी था. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट अस सी थ्रू एग्जांपल. ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे. वो कल से कुछ नहीं कर रहा था. वो कल से कुछ नहीं कर रहा था. ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे. ही हैड, तो हैड किसके लिए आता है, पास्ट टेंस के लिए, बराबर. परफेक्ट के लिए भी हम हैड यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड, बराबर. नॉट बीन डूइंग, अब डूइंग है, डू के पीछे आईएनजी तो कंटिन्यूस है, समझ आया. तो ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे. देखो चिल्ड्रन, पीछे के कोई पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा. अगर ये प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो भी इसमें पीछे का कोई पार्ट चेंज नहीं होता एक्सेप्ट वर्ब. तो वर्ब इज द मेन थिंग, वर्ब है वो मेन थिंग है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे, समझ आया. सो वो कल से कुछ नहीं कर रहा था. कुछ नहीं करना, वो चालू ही था उसका कुछ नहीं करना. कब, पास में से, कब से, यस्टरडे से, समझ आया. तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ चिल्ड्रन, we are going to we are going to do this lesson in two parts. Okay, this was all about our first part. In that we have already learned all types of present tense, simple present tense, then present continuous, then present perfect, then present perfect continuous tense. past tense के भी हमने चारों टाइप्स पढ़े हैं. इसी तरह से सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस और सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, समझ आया. तो ये हमने चारों टाइप्स हमने सीखे. अब हम फ्यूचर टेंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.